बंगाल फाइल्स क्या कहेंगे आप? What do you expect from a man who gave us Kashmir Files? He is on a roll, and now he has given us Bengal Files. So the intensity is on the higher level. You cannot look at it as a film. I can't. I have not looked at it as a film. I'm just looking at it as a history. It's a part of history. It's a slice of history which was hidden, which was buried down in the part of history. So I think it's an experience, and it's also a jolt for us as a people. Because when the point is said, when he said कि चौथा lion missing है, that really hit me very hard. Like in the country where we live, we don't fight for our own rights. Rather, we cannot fight for our own rights because of that lack of comfort and lack of safety and lack of support from the society. One thing I Yes. saw that you were like, I mean, very happening in the film. Like you were enjoying, you were Of course. reading. That's a great thing. And a lot of dialogues were there in the film which are hard hitting. That she tells about the dialogue writing and all. Very beautiful. Zinda rehna hai. That made me cry. Like it is so important. Every film, even in Shah Rukh film, says that zinda rehna hai, but his way of saying zinda rehna is alag. And इस film का जो मायने है जिंदा रहने का, it's not only you breathe and you eat your food and you do your daily activities. जिंदा रहने का मतलब है fight for your rights. That's what is the meaning of zinda rehna, and that's what is the, and that's why I think symbolically the girl's name is Bharti. So somewhere Vivek also wants to give us a message that you have to keep your mother alive, keep yourself alive. Tell us about the performances of all the actors. All the actors have been given beautiful parts, and they have been given a spotlight to shine on. Like if it is a Mithunda, the way he says, I cannot speak. My God, that made me cry. Like his tongue. Dada, क्या बात है, क्या बात है. Tell us about Pallavi Joshi and Simrat. I think they both have done. Both have done. I think Pallavi has lived the character. She has really lived the character. I am not looking at the prosthesis. I am not looking at the hair. I am not looking at the outer experience. She has embodied the soul of the character. That's what I can say. And Simrat is very, very beautiful, very intense, and very convincing as a younger version of. She is very convincing. When in every scene, she is so convincing. Especially she has one monologue. And I was the one who clapped for it, and I really believe that, she is a terrific performer. Even Ekalavya Sood, I will say, he comes like a spark. He has an electric energy about him. Amazing. Dibyendru, my God, like his last scene, it will take long for me to forget his face, if I'm getting goosebumps. He was totally in his character, and I think the credit goes to Vivek sir. Like he has made sure that everybody gets a spotlight. And how? Tell us about the rating of the film. Out of 5 stars, 8 stars. Thank you so much. About your reaction of the film. पिक्चर काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आई. एंड हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट उसमें दिखाया गया है जो हमने किताबों में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट फिल्म में पहली बार देखने को मिला, तो आई लाइक इट. विवेक रंजन अग्रवर्ती, क्या उनका डायरेक्शन निखरता जा रहा है? तश्कीन नाउ, अपार्ट फ्रॉम दैट द कश्मीर फाइल एंड नाउ दिस. सो मैं अभी उनके डायरेक्शन पे ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ. उन्होंने अच्छा काम किया है, हमेशा अच्छा काम डिलीवर करते हैं. कंपेयर किया जाए कश्मीर फाइल्स से तो मुझे कश्मीर फाइल्स ज़्यादा ग्रिपिंग लगी थी, बट इसमें भी उन्होंने बहुत ही एक डार्क चैप्टर हिस्ट्री का दिखाया है. इस फिल्म में कई सारे ऐसे पार्ट थे जो देख के हम लोग काफ़ी शॉक थे, तो इन्होंने अच्छा काम किया है, मुझे पसंद है. एक्टर्स की एक्टिंग कितनी कमाल की लगी, कितनी रियल लगी, कितनी जेन्युइन लगी, स्पेशली सिमरत हो, पल्लवी जोशी हो, शाश्वत चटर्जी हो. सो मुझे ओवरऑल सभी की परफॉर्मेंस पसंद आई. अपनी लीड एक्ट्रेस का मुझे ओके लगा, बट बाकी जितने भी सपोर्टिंग कास्ट में जितने लोग थे उन्होंने बहुत ऑन पॉइंट एक्टिंग की है. एज ए फिल्म लवर, डिड यू एंजॉय द फिल्म एंड क्या आप पब्लिक को रिकमेंड करोगे देखने के लिए?
या मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये अपने हिस्ट्री का एक पार्ट है जो लोगों को देखना चाहिए, जानना चाहिए. इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री. Any scene, anything that you really connected or got very strong feelings, anything कुछ अच्छा लगा फिल्म में, एक्टिंग, डायलॉग्स? कई सारे डायलॉग थे इस फिल्म में जो बहुत हार्ड हिटिंग थे, वो गूज बम्प भी आए हैं. अभी मुझे एग्जैक्टली वो डायलॉग्स याद नहीं है, बट कई सारे डायलॉग्स हैं जो गूज बम्प वाले हैं. प्लस एक दो सीन्स ऐसे थे जहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे का जितना भी दिखाया जा रहा था सिनेरियो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चराइज़ किया गया है. वन टेक शॉट्स लिए गए थे एंड वो उस घटना में हम लोग बहुत इमर्सिव तरीके से बहुत उसमें इन्वेस्ट हो चुके थे. तो बहुत अच्छा. 3.5. थैंक यू भाई. थैंक यू. आप काफ़ी देर से सबको रिव्यू दे रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? बंगाल फाइल आपने देखी? बंगाल फाइल सबको देखनी चाहिए. पिक्चर अच्छी है. तो डायरेक्टर हैं इसके विवेक रंजन अग्निहोत्री, सबको बताऊँ. अभी कुछ दिन पहले वो बंगाल में गए थे टेलर के लिए, टेलर लॉन्च करना है वहाँ पे, वो कर नहीं पाए. जी बिल्कुल सही. ठीक है, आजकल ऐसी ऐसी जगह है कि वो ज़रूरी नहीं है कि बंगाल में जाके टेलर लॉन्च किया जाए, ऐसा ऑनलाइन भी किया जा सकता है. बंगाल के लोग भी देख लें. बंगाल के लोगों ने क्या, बंगाल में पिक्चर नहीं लगेगी क्या लोग देखेंगे नहीं? सही कह रहे हैं. 4 दिन में 5 दिन में कभी तो देखेंगे. आप कहाँ तक छुपाओगे लोगों से? कहाँ तक वो चीज़ें, कहाँ तक अपनी कुर्सी बचा के भागोगे? नहीं भाग सकते आप. तो मैं तो यही कहूँगा कि ये ना तो कोई प्रोपेगेंडा पिक्चर है, ना इससे कोई दंगे हो रहे हैं, ना किसी को कोई दिक्कत है, ना किसी को हानि आने वाली है. इस पिक्चर के अंदर मैंने भी काम किया है. सर का काम करने का तरीका मैंने देखा है. और मिथुन सर, अनुपम सर और पल्लवी जोशी मैम, इतना अच्छा काम किया उन्होंने कि पूछो मत. सबको पिक्चर देखनी चाहिए. बंगाल फाइल्स ये हमारी 70-80 साल पुरानी हिस्ट्री है. और कोई अगर आपके सामने हिस्ट्री दिखा रहा है तो उसको देखी जाए. देखने के बाद उसको एनालाइज किया जाए कि यार क्या झूठ है क्या सच है. हमें तो पता नहीं, मेरी 30 साल की उम्र है. जी बिल्कुल सही है. तो हमें अगर कोई हिस्ट्री दिखाने की कोशिश कर रहा है हमारे भले के लिए कि भाई चलो ठीक है, हम अपनी जनता को, अपने लोगों को हिस्ट्री दिखाते हैं 1946 की, पार्टीशन से पहले की. मैंने एक सीन देखा इस पिक्चर के अंदर 10 मिनट लास्ट में. तो वो क्या होता है, एक सिख बना रखा है, एक एक्टर है लड़का का नाम नहीं जानता. तो वो कहता है जो इसके अंदर विलन है मिमो चक्रवर्ती, हाँ, तो उनको विलन बना रखा है. बड़ी खतरनाक एक्टिंग किया Actually भाई वो क्या वो शॉक. पूछो मत यार. आप मैं शौक रह गया उन्हें देखा. अरे मैंने ये तो हाँ, फिर तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर आज़ादी मिल जाएगी हमको. इधर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी. अपने पाकिस्तान के लिए कहते हैं 5 मिनट में हमें आज़ादी मिल जाएगी. और इस 5 मिनट के अंदर इसके 2 पार्ट कर देंगे हम. जैसे हिंदुस्तान के 2 पार्ट कर दिए ना. सोचो ना यार, अब क्या मेंटलिटी है वो लोगों की. क्या लोगों ने सोचा कि आज़ादी के बाद 2 पार्ट कर देंगे हम. तो बाइक से खींचते हैं, वो 2 पार्ट हो जाते हैं. एक सिख भाई होता है. तो मुझे बड़ा वो हॉन्ट कर गई, मेरे को लग गया मेरे यहाँ से. नहीं it was actually haunting. और विवेक सर, बहुत सारे सीन्स हैं ऐसे. और बस आप फिल्में देखो यार, ऐसी ऐसी स्टोरी तो हमें देखनी चाहिए. और जब बात आ जाए देश की, तो देश की हिस्ट्री तो हमारा जानना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, क्योंकि यही रहना है हमें. बहुत कम डायरेक्टर जो बोलते हैं वो करके दिखाता है. आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री उनमें से है. चाहे कश्मीर फाइल ले लो, चाहे तशकींद फाइल्स ले लो, चाहे इसकी बात कर ले. हाँ, ताशगंज फाइल्स ले लीजिए आप. मतलब वो ऐसी कहानी डिलीवर कर रहे हैं जो लोगों को जाननी चाहिए. और ऐसा सिनेमा भारत में बनना ज़रूरी है, चाहिए भी. सर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ऐसा सिनेमा, ऐसे सिनेमा की ज़रूरत भारत को है. अगर बॉलीवुड के अंदर 2 से 4 लोग विवेक सर जैसे अगर आ रहे हैं, उनके बीच से निकल के, उनके बीचों बीच में से, कि हम ऐसी फिल्में बनाएंगे, हम ऐसी कहानियाँ दिखाएंगे लोगों को. यार बहुत हिम्मत की बात होती है थिएटर में फिल्म लगाना, यहाँ तक पहुँचाना. बहुत कैपेबिलिटी होती है इंसान के अंदर. बांध के रखना. 3 घंटे की फिल्म है, आजकल लोग 2 घंटे में उठ जाते हैं कुर्सी छोड़ के. 3 घंटे पिक्चर ने बांध के रखा है. स्क्रीनिंग टाइम कितना लंबा है सर, देखिए आप. मैं कह रहा हूँ पूरी पब्लिक, मैंने देखा कि लोग ना उठ जाएं. मैंने कहा नहीं यार, क्या मतलब. आपको मतलब बहुत पसंद है. बहुत पिक्चर मेरे को बहुत अच्छी लगी. देखने के लिए देखना चाहिए कि नहीं, पब्लिक को देखनी चाहिए. जितने मेरे यार दोस्त हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी कम्युनिटी के, सबको देखनी चाहिए पिक्चर ये. और फिल्म को फिल्म के तौर पर देखना चाहिए. फिल्म के तौर पे देखना चाहिए. रेटिंग क्या है 5 में से आपकी? 5 में से 10. थैंक यू सो मच. अगर 5 में से 5 चाहिए तो 5 में से 5. क्या कहना चाहेंगे
एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, कैसे लगी आपको फिल्म? फिल्म वर्थ इट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था इस फिल्म के बारे में कि इसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी है या फिर ऐसो। आई गेस हम लोग रील्स वाले ज़माने से आते हैं तो हमारी आदत हो चुकी है वो 15 सेकंड्स 20 सेकंड्स पे भागने की, बट अगर आप ठहर के देखते हो तो फिल्म बहुत अच्छी है। It mostly talks about the history of Bengal, I mean from 1942 till 2025. Tell us about how accurately he depicted, because of course he said at the start that it's an inspired story, but how real, how truthful you found it, and how well he has presented. Tell us about that. मुश्किल थी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाना क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। मुझे अच्छी लगी कि डायरेक्टर ने इस तरीके का स्टेप लिया और जो भी चीज़ें थी उन्होंने बिल्कुल एक रॉ तरीके से दिखाने की कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी जैसे मुझे पता चला कि बहुत जगह इसको बैन भी किया गया है, तो आई गेस यही एक रीज़न है, बिकॉज बहुत सारी सीन्स ऐसी है जो शायद हर कोई ना देखना चाहे। परफॉर्मेंसेस कैसी लगी? परफॉर्मेंस मुझे लगता है हर कोई एक से बढ़कर एक था, but हाँ, मैं अनुपम सर को देखना चाह रहा था बिकॉज हमने गांधी जी के कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा देख रखा है पहले से, और जब अनुपम सर की बात आई उन्होंने बहुत अच्छा निभाया उस कैरेक्टर को, एंड उन्हें वो स्क्रीन टाइम भी दी गई है ताकि वो उस चीज़ को दिखा सके अच्छे से। were you expecting some strong roles by Simrat Kaur? I think she is just, I mean, not that Yeah. older, but still, Yes. क्या उनकी performance आपको surprise करे? Because at her age, it's not easy to deliver such a role. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बिकॉज एक इतने ज़्यादा स्क्रीन टाइम में रहना और ऑडियंस का वो एक आई ग्रैब करना, इट्स रियली अ वेरी बिग डील एक्चुअली। बट 3.5 घंटा क्या बहुत है? कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा कम होना चाहिए था। Tell us about that. देखिए, अगर कम रहता तो शायद वो स्टोरी उस तरीके से जस्टिफाई हो नहीं पाती। फर्स्ट हाफ थोड़ी स्लो है, सेकेंड हाफ इंटरेस्टिंग है। इवन लास्ट होते होते तो मैं आंखों में आंसू थे मेरे। It's a worth for money or not? कैसे? बिल्कुल वर्थ इट है, मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप जाओ, प्लीज़ देखो। और इस फिल्म को कैसे फिल्म की तरह से देखना चाहिए? Tell us about that. आप एज अ हिस्ट्री की तरह आप देखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। Rating out of 5 for the film. 4.5। Anything best scene, best thing, direction, acting, क्या सबसे बेस्ट लगा? Tell us about that. कैमरा एंगल्स उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। Do you think consistent तौर पे कश्मीर फाइल्स एंड ऑल दिस बहुत हार्ड होता है बोलना और करना? What विवेक डज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आप एक ऐसी चीज़ को टच कर रहे हो जो कि सच में हो चुकी है। आप एक सोची हुई स्टोरी को नहीं लेकर आ रहे हो। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को निभाया। रेटिंग आउट ऑफ 5 for the film. 4.5। Thank you so much.